Hi everyone and welcome back to my channel. Yes, I'm back with another video for CA Inter Guidance. I've already posted a video on CA Inter Guidance where I talked about classes and faculties. And if you are a CA Inter student and you have not watched that video, please go and watch that video. This is the part 2 of that series, CA Inter Guidance, and this will be all about theory subjects. Yesterday I posted a video short on Jan 26 date sheet for CA Inter and CA Final, where a CA Inter student commented that theory subjects के लिए guidance चाहिए because सारे जो topics सारे important लग रहे हैं. क्या करना चाहिए, किसको ज़्यादा time देना है, किसको कम, ये अभी पता लगाना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज यू विल वेस्ट टाइम एंड एट द एंड यू विल बी लेफ्ट विद रिग्रेट्स कि कुछ भी नहीं माइंड में बैठ रहा है. तो उसको प्लानिंग करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड रिकमेंड जो बेस्ट मेंटोर्स हैं, वेल नोन मेंटोर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस डाले होते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं एज़ पर दिस सिलेबस. तो ईयर वाइज आप उनको रेफ़र कर सकते हो. जैसे 2026 के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है तो आप वो रेफ़र कर सकते हो. बाकी एज अ स्टूडेंट आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो. So now let's hop into the video without wasting any further time. I will be sharing my screen where you will be seeing something. Now I think you can see on your screens, like first theory subject in CA Inter is in the group 1, corporate and other laws. ठीक है. In that we have three modules, module 1, 2 and 3. Now if we go into module 1 basically contains 6 chapters. See on that screen, not here, 6 chapters. Like you can see preliminary, it's not like इसको पढ़ने की ज़रूरत कुछ नहीं होती है. सेकेंड से हम स्टार्ट करेंगे. इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. अब आप देखोगे तो इन 6 में से मैं अगर ईजी सब्जेक्ट्स आपको बताऊँ, सॉरी ईजी चैप्टर्स अगर आपको मैं इसमें काउंट कर रहा हूँ तो वो है डिपॉजिट्स एंड चार्जेस. ये 2 चैप्टर इतनी ईजी एंड स्कोरिंग है. मे बी लेस स्कोर हो बट ये ईजी चैप्टर और कम टाइम में कवर हो सकते हैं. मैं ओवरऑल अभी आपको बता रही हूँ. अभी मैं डिटेल में इन डेप्थ वेटेज वाइज भी आपको क्लियर कर दूँगी. तो हमारे बेसिकली 5 चैप्टर हो गए मॉड्यूल 1 में. 6 मान के चलो, 5 हो गए हैं बेसिकली. नाउ इफ़ वी गो इनटू मॉड्यूल नंबर 2, 1 2 3 4 5 chapters. Management and administration, the most important chapter of CA Inter. Note this on your diary. And declaration and payment of dividend, easy chapter. Accounts of companies, audit and auditors, it's also in your audit, your group 2, paper number 5. So as we can see, there are total 5 chapters in module 2. So 5 chapters. Management is the important one in this and payment of dividend is the easiest one. I'm not talking about the other 3. I'll talk about the weightage after that. Now module number 3, LLP chapter only, right? So in total 12 chapters in your corporate law, and other laws has only and only 3 chapters within it: general clause, interpretation and FEMA, Foreign Exchange Management Act. Okay, now we know there are in total 15 chapters in 3 modules. Okay, in the first 2 modules we have our 11 chapters and 3 in our other laws. Yeah, and 1 more is there. So in total 15 chapters. Now if we go to the weightage part, you can see on the screen weightage part, like we have our other laws of 30 marks and corporate laws of 70 marks, total 100 marks paper. Yeah, so company law and LLP अलग से वेटेज दिया जाता है. तो हम LLP को अगर देखें, सो LLP की जो वेटेज है 15 to 20% है. मतलब अगर आपके 70 मार्क्स का पेपर है कॉर्पोरेट लॉ का, उसमें से कितने मार्क्स का आपका आएगा? 14 मार्क्स का LLP का. 14 मार्क्स मैक्सिमम आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड मिनिमम 15% ऑफ 70. यू कैन कैलकुलेट इट कि 70 का 15% कितना बनता है. यू कैन सी है 10.5. दैट मीन्स 10 to 14 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ LLP में से आने वाला है. 10 to 15 मार्क्स. तो आप मिनिमम 10 मार्क्स will come from the LLP chapter itself. Single chapter
single chapter holds 10 marks weightage. Okay, I'm not talking about the other chapters of corporate law, I'm moving to the other law part. Other law has 3 chapters and the weightage is 30 marks for all. Now you guess, 12 chapters, okay, 11 chapters for 70 marks, 3 chapters for 30 marks. Now if you are a smart student, you will definitely choose doing those 3 chapters for 30 marks. एंड उसमें से भी 30 मार्क्स में से भी अगर मैं आपको बताऊं तो मोर वेटेज इज ऑन जनरल क्लॉजेज एक्ट विच इज अराउंड 10 to 12 मार्क्स या देन फेमा एंड देन इंटरप्रिटेशन काफ़ी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट मैं अगर आपको बोलूँ आप अपने मिनिमम 2 to 3 days अगर अदर लॉज पे दे दोगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर 25 मार्क्स. 25 कहीं नहीं जा रहे, लॉ में आपको कभी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. दैट्स वाई आई एम सेइंग 25 मार्क्स. अगर इस 30 मार्क्स को आप इतना रिवाइज कर लो अच्छे से तो 25 मार्क्स तो वैसे ही पक्के. साथ में अपने LLP रिवाइज कर लिया, अगर 35 मार्क्स डन. 35 पे भी अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम बोलूँ 30 तो यहीं कवर हो गए. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू डू दिस चैप्टर विच आई एम सेइंग, डिविडेंड, registration of charges, and one more, deposits. This will also cover 10 marks. If I count 8 to 10 marks ही 3 चैप्टर्स पे कवर कर लेंगे तो 40 मार्क्स कहीं नहीं गए. आप पहले इन पे फोकस करो. अभी मैंने मुश्किल की बात नहीं करी है. अदर लॉज में लैंग्वेज मुश्किल लग सकती है, लाइक इंटरप्रिटेशन में कुछ क्लॉजेज आते हैं, ईजिज्म जेनरिस हो गया, एंड मेनी अदर क्लॉजेज आर देयर, मेनी अदर वर्ड्स आर देयर विच माइट सीम डिफिकल्ट टू यू, विच माइट सीम नॉट नॉर्मल टू यू. लाइक मेरे टाइम पे मुझे इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा लगता था, 4 मार्क्स का आया था एंड मेरे दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही गए थे. जनरल क्लॉज इज़ वेरी ईजी, वेरी बेसिक चैप्टर. उसमें पता है कैसे दे गिव यू द वर्ड डिफाइन जेंडर. बस आपको वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए. अगर आप एक बार पढ़ के चले जाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी. सो फोकस ऑन अदर लॉज, LLP, acceptance of acceptance of deposits by the companies, declaration and payment of dividend, and registration of charges. So these 7 chapters I'm talking about, 3 from other laws and 4 from the company law, which I'm talking about deposit, dividend charge and LLP. अगर ये आप कर लो, आपके 40 to 50 मार्क्स सिक्योर्ड हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द कंपनी लॉ जिसमें से आराम से 10-12 मार्क्स का पेपर आता है, वो है मैनेजमेंट. अगर आप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर लोगे, चार्ज और डिपॉजिट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, तो वो अगर आप कर लेते हो सो आपके 30% ऑफ 70 विच मीन्स 21 मार्क्स. 21 यहाँ से आ जाएंगे आराम से. सो अगर आप ये फोकस कर लो, जो मैं यहाँ पे लिस्ट भी अटैच कर दूँगी, ठीक है. आप ये चैप्टर्स पहले कर लो, फिर अगर टाइम बचता है तो आप प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, अकाउंट ऑफ कंपनीज, ऑडिट, ऑडिटर्स एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये चैप्टर्स कर सकते हो. ये चैप्टर्स आते हैं, भरपूर आते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट प्रायोरिटी वाइज अगर बोलें और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट के लिए बोलें तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, जनरल मीटिंग वाला, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ईजी और जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो भी मैंने मेंशन करे हैं, तो आप वो मत छोड़ के जाना. जो छोड़ने नहीं है ना, मैं वो बता रही हूँ. बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो. मेरी तरफ से यही है कि ये जो 4 चैप्टर्स आप लिस्ट में भी देख लेना, अभी मैं अटैच कर दूँगी, और जो ये 3 चैप्टर्स हैं इसको करके जाना, बहुत अच्छे से आराम से स्कोर कर लोगे. I think I should also make a comparison of my attempt paper. Like मेरे पास मेरी स्टैंड कॉपीज हैं, मैं उसके आंसर्स पे आपको शो करूँगी. अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको जो मार्क करवाए हैं, I have marked all these to give priority. Acceptance of deposit, charge, administration chapter, dividend chapter, and LLP from your corporate law. Other laws, I want all three to be prepared. Now I will show you how much paper weightage is coming from these chapters. I'm giving the example of my attempt, May 24 attempt. So you can see this is the examination paper, May 24. Okay. Now, if I move on, first chapter is not from those topics that I marked. बी भी नहीं है. सी पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला सी पार्ट हमारा जो मैंने टॉपिक मार्क करवाया, कौन से टॉपिक में से आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. देखो क्वेश्चन में मैं कीवर्ड ढूंढ रही हूँ, मैं आपको कीवर्ड से बता दूँगी. ये देखो कौन से चैप्टर से आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि मैंने आपको मार्क करवाया है आपकी अदर लॉज में. आप देख सकते हो अदर लॉज में थर्ड चैप्टर इज फेमा.
अब मैं अगर इसका आंसर आपको दिखाऊं कि आंसर कैसे मैंने इसका प्रेजेंट किया था, आप क्वेश्चन खुद से एक बार रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आंसर पूरा रीड करूंगी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं रेफरेंस दे दूँ कि जैसे देखो फेमा आया, मैंने मार्क करवाया, उसमें से कितने मार्क्स का आया, 4 मार्क्स का आया। अब देखते हैं मुझे कितने मार्क्स मिले। सो दिस इज माई आंसर टू फेमा 1 का सी पार्ट है। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मेरे को मार्क्स कितने मिले हैं, 3.5 आउट ऑफ 4। गेटिंग 3.5 आउट ऑफ 4 इन लॉ इज इक्वल टू फुल मार्क्स। एक्चुअली फुल मार्क्स मिलते नहीं है आपको थ्योरी एग्जाम में, तो अगर 3.5 मिल रहे हैं दैट मीन्स माई आंसर वॉज टोटली करेक्ट। सो आई बिगेन विद द सेक्शन नंबर, आई कोटेड सेक्शन नंबर ऑफ फेमा एंड देन आई स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। हमसे जो पूछा पहले मैंने उसका आंसर नहीं दिया, आई रोट द प्रोविजन, पहले मैंने सेक्शन लिखा फिर प्रोविजन लिखा, फिर यहाँ पर उसकी रेफरेंस दी, और एंड में कंक्लूजन देखो कैसे दिया। कंक्लूजन मैंने यहाँ पर ऐसे देखो, कंक्लूजन की एडिंग डाली, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमसे पूछा था पेपर में, फर्स्ट एंड सेकंड के फॉर्म में पूछा था, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड के फॉर्म में कंक्लूजन में आंसर दे दिया। आई गॉट 3.5 मार्क्स। सो दिस इज हाउ आई प्रेजेंटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स। हम ऐड करते चलेंगे हमारे मार्क्स, कितने मार्क्स उन टॉपिक्स में से आए जितने मैंने आपको बताए, 4 प्लस। आगे देखते हैं कौन सा आता है। सेकंड का बी पार्ट, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक 3 का और एक 2 का, तो 5 मार्क्स। अब कौन से टॉपिक्स हैं ये भी देख लेते हैं। डिटरमाइन प्रोसीजर ऑफ कास्टिंग द वोट इन द इवेंट्स ऑफ सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, we should have conducting on special business at extraordinary general meeting. This is the keyword. This means chapter number 7 your administration chapter से ये क्वेश्चन आया। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, डिपॉजिट्स। तो ऐसे कीवर्ड्स में ढूंढ के देखो कैसे कैसे पता लग जा रहा है कि कौन से चैप्टर से। सो ये भी मैंने आपको मार्क करा, डिपॉजिट भी। अब इसका आंसर देखें एक बार, सेकंड का बी पार्ट, लेट मी सर्च फॉर द आंसर। सो यस आई गॉट द आंसर। सो दिस वाज फॉर 5 मार्क्स राइट, इन टोटल 5 मार्क्स, 3 and 2, और जिसमें से मेरे को मिले 3 मार्क्स। ओके, सो सेकंड के बी पार्ट में मैंने पहले फिर से सेक्शन को कोट किया। अब आप सोचोगे सेक्शन कैसे याद है, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स जो प्रिपेयर किए थे, तो वो प्रायोरिटी वाइज टॉपिक ऐसे प्रिपेयर किए थे कि उनके सेक्शन भी याद थे। तो एज पर सेक्शन 114 जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर होता है आई गेस, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, तो हाँ स्पेशल बिजनेस के रिगार्डिंग हमें बताना है, तो मैंने ऐसे इसको रेफरेंस दिया एंड आफ्टर दैट आई कंक्लूडेड हेंस करके, हेंस हैविंग नेटवर्क दिस, ठीक है, खत्म। सेकंड पार्ट देखते हैं, तो एक मिनट। बी में हमारे 2 आंसर थे, ये हमारा सेकंड का आंसर था। सेकंड में मुझे मिले 1 मार्क्स विच वॉज ऑफ 2 मार्क्स आई गेस, 2 मार्क्स में से 1 मुझे मिले, एंड पहले वाले में मुझे मिले 2 आउट ऑफ 3 इन योर बी पार्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई प्रेजेंट माई आंसर। अब हम टोटल देख लेते हैं, 4 मार्क्स का हमारा पहले था, प्लस 5 मार्क्स का और हो गया, 9 मार्क्स। अभी तक 9 मार्क्स का हो गया 2 क्वेश्चन में। वाओ। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो फ्रॉम जनरल क्लॉजेज, जो मैंने आपको मार्क कराया है आपके अदर लॉज चैप्टर में। अदर लॉज में पहला चैप्टर जनरल क्लॉज का है, उसमें से ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, डायरेक्ट आपसे वैलिडिटी पूछी। तो इसका आंसर में देखते हैं मैंने क्या रिप्लाई किया है। सेकंड का सी, सो दिस इज योर सेकंड का सी एंड आई गॉट 2 आउट ऑफ 4, यस 50% मार्क्स। यू कैन सी यहाँ पर मुझे प्रोविजन याद, यहाँ पर मुझे सेक्शन वगैरह कुछ याद नहीं था, तो मैंने क्या लिखा, एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। चैप्टर का नाम अगर अच्छे से लिख दोगे, अगर सेक्शन नहीं भी आता यू कैन राइट एप्लीकेबल प्रोविजंस। यहाँ पर फिर मैंने लिखा इट स्टेटेड दैट पावर टू अपॉइंट, तो ऐसे इस तरीके से स्पेस दिया, हर एक लाइन के बाद एक एक लाइन छोड़ी है, एक पैराग्राफ के बाद एक एक लाइन छोड़ी है। सो दैट्स हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, इवन इफ यू आर गेटिंग 50 मार्क्स दैट्स गुड। अगर आप किसी को पढ़ के लॉ में 50 मार्क्स ला रहे हो 4 में से 2, इट्स गुड। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो और अच्छे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो अभी तक हमारे 9 हो गए प्लस 2 मोर 11 मार्क्स, 2 क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपके कितने मार्क्स के हैं टोटल अगर मैं आपको बताऊं, 28 मार्क्स के, 28 में से 11 मार्क्स का आपका उनमें से आया जो मैंने आपको अभी मार्क कराई है। सो ऑलमोस्ट 50% दो में कवर हुए, ठीक है, मार्क्स 28 में से 11। अब आ जाते हैं इसमें, ये क्या है, ओके, सी के भी 2 पार्ट्स थे, दोनों के दोनों जनरल क्लॉजेस के, ठीक है। ओके, ये 5 मार्क्स का था पूरा, ये 2 मार्क्स का एंड वो 2 मार्क्स का, आई गॉट 1 इन ईच। आफ्टर दैट थर्ड में से बी वाला पार्ट फिर से हमारे टॉपिक्स में से आया, जो कि है आपका जनरल मीटिंग वाले टॉपिक में से। जनरल मीटिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में, लाइक अगर 5 क्वेश्चन है 5 में से कोई ना कोई एक पार्ट जनरल मीटिंग का जरूर होता है। तो वो हम देखते हैं थर्ड का बी पार्ट कहाँ है हमारा। थर्ड का बी आई गेस, थर्ड का बी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था अटेंड, एज फार एज आई रिमेंबर, just a second. Yeah, here it is. So if I talk about my score in this part, I got very less marks, 1.5 out of 5. How? I don't know. I presented my answer giving reference to the section also, and maybe there is some mistake. I still got 1.5 out of that. Okay. Now I wrote conclusion, but conclusion was not fine. That's why I got 0. So provision के marks मिले मुझे 1.5. अगर आप सोचो मैं डायरेक्ट conclusion लिख दूँ, conclusion है ही गलत, तो फिर तो मेरे को मार्क्स ही ना मिलते 1.5 भी। सो दैट मीन्स प्रोविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहे हो और अगर वो सही है तो यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो। दिस इज द ब्यूटीफुल, आई मीन दिस इज द वेरी गुड थिंग आई फाइंड इन थ्योरी पेपर्स कि आप प्रोविजन लिखोगे उसके मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका कंक्लूजन सही है या नहीं है। प्रैक्टिकल में बेसिकली कंक्लूजन देखते हैं, वो जो फाइनल आंसर आता है अगर वो गलत हो गया ना तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो नाउ अभी तक हमने देखा ये कितने मार्क्स का पेपर और हमारा ऐड हो गया 5 मार्क्स का, जो कि जनरल मीटिंग का है, प्लस 4 मार्क्स आपके इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में से। तो देखो इंटरप्रिटेशन का अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, सी पार्ट में ही इंटरप्रिटेशन का आंसर है थर्ड के सी में, तो वो आप यहाँ देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है, एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इंटरप्रिटेशन में कोई सेक्शन वगैरह नहीं होते हैं बेसिकली। तो मुझे कितने मार्क्स मिले इसमें, 2 आउट ऑफ 4। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा लिखा, इतना बड़ा मैंने प्रेजेंट किया इसको।
स्टिल आई गो 2 मार्क्स। फुल मार्क्स तो लॉ में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, बट दैट टू इंटरप्रिटेशन में भी अगर मुझे 2 मार्क्स मिल रहा है, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई नो इट्स अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ चैप्टर, बट इट्स ईजी, लैंग्वेज डिफरेंट है बट ईजी है। तो आप देख सकते हो, तो 9 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे हमारे, प्लस 9 20 मार्क्स का अभी तक हमारा पेपर उन टॉपिक में से बन चुका है। उसके बाद मैं भी आपको आंसर्स दिखाने से बढ़ाए मैं आपको मार्क्स टोटल करा के बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एक और अलग से वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी जिसमें मैंने पूरी आंसर शीट डिस्कस करी है, तो आप एक बार वो देख लेना लॉ के लिए, मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये देख सकते हो आप, ये हमारा कौन से चैप्टर में से पूछा गया है। ये बेसिकली हमारा पूछा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में से। तो आप देखो ये 5 मार्क्स का आ गया, प्लस 5, प्लस उसके अलावा 5 मार्क्स और ये एलएलपी में से पूछ लिया, देख रहे हो। एलएलपी में से, एलएलपी भी आपको बोला जनरली, ओके जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट इन कनेक्शन विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। यस आई नो दिस इज समथिंग टिपिकल, बट हाँ ये पूछा गया था इंटरप्रिटेशन में से। तो 34 अगर आप पढ़ के जाओगे तो इट्स वेरी इजी। और ये आपका कहाँ से पूछा है, एक सेकंड, दिस इज फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में से पूछ लिया, प्लस 5। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मोर क्वेश्चंस ऑन एलएलपी जनरल क्लॉज, तो 5 प्लस 4 प्लस अगेन 5 मार्क्स। This is from meeting chapter, management and administration chapter. Apart from that, we have 4 marks from FEMA also. Okay. Now, as you can see here, 57 marks. 57 marks out of those topics that I made you mark. अब आप ऐसे ही जो इस बार का अटेम्प्ट का पेपर है सितंबर 2025 का, उसमें देखो कि ये टॉपिक्स में से कितने मार्क्स के आपके आए हैं। अगर प्लस 50 प्लस मार्क्स के आ रहे हैं, देन जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है वही फॉलो करो। इन चैप्टर्स को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से कवर करो, जितना अच्छे से हो सके, तो आप प्रॉपरली स्कोर कर पाओगे। ऑडिट के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है एंड आई डोंट वांट कि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं पोस्ट करूँ। तो आप अभी लॉ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, उतनी देर में ऑडिट की भी अपलोड हो जाएगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड and I wish you best of luck for your preparation. You will definitely kill this exam and prepare carefully, okay? And plan everything carefully. See you in the next video. Thank you.